Good afternoon, everybody. Now we will start the class. I'm sharing a page. Then one by one I ask question answer from you. Everybody mute yourself. Chapter 1 था शेयरिंग दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. एक मिनट जाओ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, फिर से शेयर करने दो। देखो आप दिखेगा, दिख रहा है अभी? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, अब एक एक करके हमको बताओ, पूछते हैं एक से। अभिजीत unmute yourself. Yes, ma'am. तुम बताओ, why do bones have joints? Why do bones have joints? Bones have joints to make the skeletal flexible and movable. Without them, movement would be impossible. Very good. Next, mute yourself. Yashraj, unmute करो. Yashraj, unmute yourself. Yes, ma'am. Why is our backbone made up of small vertebrae? Our backbone is made up of many small vertebrae instead of having one straight long bone, because these small bones give flexibility to our back. Very good. Next, Arnav, unmute yourself. Yes, ma'am. तुम बताओ. Yes, ma'am. एक मिनट बताओ. तुम थर्ड क्वेश्चन बताओ. Third question. The bone marrow, known as the factory of blood cells, as the blood cells are made up in this bone marrow, this is the reason that फिर से बोलो. Repeat your answer. the bone marrow is known as the factory of blood cells because the blood cells are made up inside this bone marrow. Okay. Mute yourself. Next हमको बताओगे. Yashraj. Yashraj, unmute yourself. Yes, ma'am. How does a ball and socket joint work? In a ball and socket joint are bone which has a ball like end fits into the hollow socket of another bone.
Mute yourself. Next, Kartik बताओ. Kartik, unmute yourself and switch on your video. Kartik Kumar, unmute yourself. Tejas बताओ. Tejas, unmute yourself. Yes, ma'am. Fifth question बताओ बेटा. Ma'am, fifth का. Yes. Dogs developed sense of smell, and bats use special power to hear high pitched sound. Due to this ability, bat can detect their prey. अच्छे से बताओ. Dogs have a highly developed sense of smell. Bats has special power to high pitch sound. Due to this ability, bats can detect their prey even in the dark. Mute yourself. Next हमको बताओ. गोपाल जी, unmute yourself. Yes, Last ma'am. question बताओ. Sixth का, do you breathe even when you are sleeping? Ma'am, repeat question. Do you breathe even you are sleeping? You can see on the screen also. Yes, the process of breathing takes place continuously without any rest in all living being. If the process for more than 2 minutes, the living being can die. Okay. अच्छा, next हमको बताओ. Abhineet, unmute yourself. Yes, ma'am. तुम बताओ. How are forelimbs connected to the spine? Short question answer. The four limbs connected to the spine by the shoulder, girdles, and collarbones. Very good. Okay, अब next participant हमको बताओगे. Ayush Kumar, unmute yourself. Ayush, unmute. Ayush Kumar 5, unmute yourself. Aradhya, unmute yourself. Aradhya. बताओ. State the importance of rib cage in our body. Aradhya, speak fast. Ma'am, repeat question. State the importance of rib cage in our body. Yash Raj, unmute yourself. Yash Raj. Yes, ma'am. Yash Raj बोल रहे हो? Yes, ma'am. Okay. बताओ तो. State the importance of rib cage. Rib cage protect our delicate organ, Yes, नहीं, delicate. delicate organ like lungs and the bones. Lungs and the heart. Next, Arna बताओ. Arna, unmute yourself. Yes, ma'am.
तुम यहाँ पे 5 भी करना बेटा, 4 भी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, हाउ डज अ स्नेक डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और अ प्रे? Ma'am, repeat the question. How does a snake detect the presence of an enemy or a prey? The snake detects the presence of enemy or a prey by the earth's tone through its skin. Okay. In this process, Yes, ma'am. उसके बाद कुछ नहीं लिखियो, No. उसके बाद लिखना ही था। ओके ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, एवरीबॉडी write the long question answer. Have you done the long question answer? Yes, ma'am. सबका है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, Kartik Kumar, unmute. Ma'am. Kartik Kumar, unmute yourself. Kartik Kumar, unmute yourself. सृष्टि, सृष्टि अनम्यूट करो। Yes, ma'am. तुम बताओ, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। क्या मैम? नेम द मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। The main parts of the skeletal system are the skull, the backbone, the skull, the backbone, the ribcage, the limbs. The skull, the backbone, okay. नेक्स्ट हमको बताओ, अनुष्का राज, unmute yourself. अनुष्का, unmute yourself. Yes, ma'am. बताओ, state the role of inner ear in the process of hearing. Ma'am, repeat question. State the role of inner ear in the process of hearing. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। अनुष्का, Yes, ma'am. state the role of inner ear. वेदांत, Ma'am, मुझे याद नहीं है. वेदांत, unmute yourself. Yes, ma'am. आंसर बताओ, state the role of inner ear. Repeat question, ma'am. State the role of inner ear in the process of hearing. अच्छा, कौन बता पाएगा? Everybody switch on your video. मुझे याद नहीं है. कौन बताओगे? बताओ जल्दी, वीडियो ऑन करो और बताओ फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कौन बोलोगे? दिव्यांशु, अनम्यूट करो। Yes, ma'am. बताओ, रोल ऑफ अ इनर ईयर। The inner ear plays an important role in the process of hearing. It receives the sound waves from middle ear and send it to the brain and also maintain the balance of our body. ओके, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट तुम लोगों का क्या है? चैप्टर 2 ये तो खत्म हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बाद आप लोग ब्रीथिंग सिस्टम ड्रॉ कीजिएगा। शेयरिंग हम बंद करते हैं, 1 मिनट बताते हैं। क्या मैम? मैम लॉन्ग क्वेश्चन के बाद? लॉन्ग क्वेश्चन के बाद नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बाद ड्रॉ करना है ब्रीथिंग सिस्टम। Ma'am, photosynthesis.
मैम एक मिनट रुक जाओ। मैम ब्रीथिंग सिस्टम मतलब फोटोसिंथेसिस। मैम क्वेश्चन आंसर के बाद ही ना वो लिखना होगा, मतलब फोटो बनाना होगा ब्रीथिंग सिस्टम। मैम ये वाला हाँ नहीं वो वाला नहीं दिखाते, एक मिनट। मैम फोटोसिंथेसिस वाला पेज नंबर नो पेज नंबर 2 में जो ब्रीथिंग सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है ये ड्रॉ करोगे। मैम ये लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ये पेज में ये ब्रीथिंग सिस्टम ड्रॉ करोगे। शेयर ओके मैम। मैम समझ गए। मैम पेज नंबर 2 का ना। आप चैप्टर 2 ओपन करो। यस मैम चैप्टर 2। एक मिनट आपको ब्रीथिंग सिस्टम का वो वाला ड्रॉ करना और चैप्टर 2 अभी ओपन करो, पढ़ाते हैं। चैप्टर 2 मैम में क्या है? प्लांट्स। चैप्टर 2 में क्या है? प्लांट्स। मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिए। एक मिनट। तो प्लांट्स में हम लोग क्या पढ़े थे? प्लांट्स नीड एनर्जी इन मच द सेम वे एज ह्यूमन। जैसे हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होता है वैसे ही प्लांट्स लोगों को भी क्या होता है कि एनर्जी की जरूरत होता है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं अपना। तो हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड? कैसे वो लोग खाना बनाते हैं? अ प्लांट मेक्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स। वो क्या करते हैं? उन लोगों के पास ग्रीन लीव्स होता है और ग्रीन लीव्स में क्या होते हैं? ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। उसका क्या नाम है? क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसका क्या नाम है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल से वो खाना बनाते हैं। इसीलिए क्लोरोफिल को क्या बोला जाता है? ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज फॉर द प्लांट। ग्रीन लीव्स को इसीलिए क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्रीज फॉर द प्लांट। ठीक है? मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिए। क्या? स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना बुक में। ये पेज अभी शेयर नहीं कर सकते, अभी सिर्फ दिखा सकते हैं ऐसे। लोगों के बुक में है ना, बुक तो है सबके पास। तो पेज नंबर ये ओपन करो 14, पेज नंबर 14। फिर उसके बाद देखो कि फोटोसिंथेसिस किसको कहा जाता है? द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। जो एक प्रोसेस है उससे क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मतलब मींस पुटिंग टुगेदर। सबको एक साथ में मिला के जो खाना बनता है उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ द लाइट। ठीक है? अब देखो फिर उसके बाद एक पिक्चर दिया हुआ है बुक में कि सनलाइट है और फ्लावर है, एक पेड़ है। वो क्या कर रहा है? बाहर से ऑक्सीजन लेता है, बाहर से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाएगा लीव्स में, और वो क्या करेगा? ऑक्सीजन छोड़ेगा।
इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। इसके लिए प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होता है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और यही कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट टाइप के फूड में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? हेलो मैम, हाँ, मैम बोल रहा कि प्लांट भी ड्रॉ करना है। अभी कुछ नहीं ड्रॉ करना है, अभी सिर्फ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखो या सुनो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या है। तुम लोग बुक में देख रहे हो ना, ये पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? एक ये है प्लांट है, वो यहाँ से सनलाइट ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो इसको रॉ मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रॉ मटेरियल बोला जाता है, और क्या कर रहा है? ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड लीव कहाँ से लेगा? स्टोमाटा से लेगा। एक छोटा सा होल्स रहता है प्लांट्स के, जो लीव्स होते हैं वहाँ पे छोटा छोटा होल्स रहता है, इसको क्या बोला जाता है? स्टोमाटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ। लीफ होता है और उसमें स्टोमाटा रहता है, छोटा छोटा ऐसे होल्स रहते हैं। ऐसे स्टोमाटा होगा, ऐसा लीव्स है और ऐसे छोटा छोटा होल्स रहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? स्टोमाटा। ठीक है, और रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस कब होता है? फोटोसिंथेसिस occur in the daytime. Photosynthesis is available during the daytime. अच्छा, अब हमको कोई एक बताओ, क्वेश्चन पूछते थे कि समझ में आया कि नहीं। यशराज बताओ तो, अनम्यूट योरसेल्फ। यशराज अनम्यूट। यस मैम। बताओ तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अभी हम बताएं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। The process by which green plants make their food is called photosynthesis. वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट रौनक राज अनम्यूट करो तो। रौनक राज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। क्यों लीफ ग्रीन कलर का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैम कैन आई आंसर? यस, मैम बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट हमको बताओगे व्हाट इज द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हिमांशु बता तो, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। Raw material of photosynthesis. Photosynthesis. CO2. मैम याद नहीं आ रहा है। मैम कैन आई आंसर? मैम पढ़े थे। यस, दो आंसर दो। मैम सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यस, सॉरी मैम। व्हाट आर द रॉ मैम मटेरियल्स सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस। मैम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, किसी किसी प्लांट्स को क्या होता है? फूड की जरूरत होता है। सम प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा फूड in addition to what they prepare by photosynthesis. कुछ प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन काफी की जरूरत होता है।
मैम यस मैम फोटोसिंथेसिस का सिस्टम को ये भी बोला जाता है ना, प्लांट्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, प्लांट टेक्स वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight makes glucose and oxygen. क्वेश्चन क्या है? मैम फोटोसिंथेसिस का सिस्टम को ये भी बोलते हैं ना? फोटोसिंथेसिस अगर पूछा जाएगा तो लिखोगे द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड, ऐसे बोलोगे, ठीक है? फिर हायर क्लास में जाओगे तो बोल सकते हो, अभी इतना ही बोलने से हो जाएगा, अभी इतना ही काफी है। तो जो कोई कुछ प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स नीड्स एक्स्ट्रा नरिशमेंट, कुछ एक्स्ट्रा नरिशमेंट की जरूरत होता है, तो वो क्या करते हैं? दिस प्लांट्स दैट ग्रो इन अ पुअर सॉइल, कुछ प्लांट्स होते हैं पुअर सॉइल में ये होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे कोई अच्छा मिनरल्स नहीं मिलता उसको, तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन नहीं मिलता उसको अच्छे से, तो वो क्या करेंगे? दे गेट देयर एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम द इंसेक्ट्स, तो वो प्लांट क्या करेंगे? इंसेक्ट्स को खाएंगे, ठीक है? तो इस प्लांट्स को क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देख लो ना, पेज नंबर 15 में दिया हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये एक पिचर प्लांट है, तो इसके अंदर में क्या रहता है? ग्लू टाइप का सब्सटेंसेस रहता है, ठीक है? ग्लू टाइप का सब्सटेंसेस रहेगा और उसमें इंसेक्ट्स आएगा, ट्रैप हो जाएगा और वो बंद हो जाता है, ठीक है? जैसे हम ऐसे ड्रॉ करके दिखाते हैं, वो दिख रहा है ना सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ, एक मिनट ड्रॉ करके यस दिखाते हैं। मैम। यस मैम। देखो ऐसे होता है पिक्चर प्लांट, यस मैम। ऐसे ऐसे किया हुआ रहता है, ऊपर वाला कुछ में से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और नीचे में भी ऐसे 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 बना हुआ रहता है, ठीक है? और यहाँ पे सारा ब्लू लाइक सब्सटेंसेस रहता है, अगर इंसेक्ट्स आएगा और इसको देख के अट्रैक्ट होगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसको देख के अट्रैक्ट होगा और इंसेक्ट्स यहाँ पे चिपक जाएगा, इंसेक्ट ऐसे चिपक जाएगा और ये स्लैब बंद हो जाएगा, ये स्लैब ऐसे टक से बंद हो जाता है। तो इस प्लांट को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बताओ? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डू प्लांट्स गेट एक्स्ट्रा नरिशमेंट, या व्हाई डू प्लांट कंज्यूम इंसेक्ट्स, प्लांट्स क्यों इंसेक्ट्स खाते हैं? तो क्या लिखोगे? सम प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा नरिशमेंट, ओके, सो दे trap the insects and get their nourishment from the insects, ठीक है? इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है? पिचर प्लांट, ये पिचर प्लांट है, और एक क्या है? वेनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई को ट्रैप करता है। These are the two example of such plants. They trap insects in their sticky leaves which have special shapes. इसका शेप से इतना अलग होता है, दिखने में अट्रैक्टिव होता है कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते जाते हैं। The insects get suffocated, तो जब ये बंद हो जाएगा ना, फ्लैप ऐसे ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इंसेक्ट जब उसके अंदर चला जाएगा ये बंद हो जाएगा, और अंदर में जो इंसेक्ट्स है वो सफोकेट हो जाएगा, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा उसका बॉडी क्या होगा? उसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंसेस है वो धीरे गलने लगेगा, ठीक है? और मर जाएगा। वो पूरा फर्स्ट परमानेंट फिट हो गया था, वो एवरीबॉडी परमानेंट क्लास हो गया था पूरा, हो गया। मैंने कौन किया तो बोला सर मेरी मम्मी, ठीक है? नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में
कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का? रिप्रोडक्शन मतलब क्या है ये पहले जानना होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर रेस एंड नंबर। ठीक है, जैसे एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल आता है, प्रोड्यूस होता है, इसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, नंबर अगर इंक्रीज होता है ये का ऑफस्प्रिंग का, इंडिविजुअल्स का, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय व्हिच अ लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने जैसा कोई और प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप ऑफ होते हैं? 2 टाइप ऑफ होते हैं, 2 वेज में होता है। एक होता है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स और एक होता है रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन का 2 टाइप्स होता है, दिखाई दे रहा है सबको? रिप्रोडक्शन का 2 टाइप्स है, एक क्या है? सीड्स, सीड से होता है, और एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सीड्स कहाँ रहता है? फ्रूट्स के अंदर। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोला जाता है? रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसका सीड्स प्रोड्यूस नहीं होता, जैसे बनाना, तो उसको स्टेम कटिंग करना पड़ता है, रूट कटिंग करना पड़ता है, या क्या किया जाता है, लीफ से ही दूसरा प्लांट्स निकलता है, इसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। और इसका 2 वे होता है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? सबको समझ में आया ना? ठीक है, तो यही तुम लोग पढ़ के आओगे और यही होमवर्क रहेगा, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब हमको बताओ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो क्लास खत्म करेंगे और 1 मिनट बचा हुआ है। बताओ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अनम्यूट किए हैं, बताओ। यशराज बताओ तो। नो मैम, नहीं है प्रॉब्लम। किसी मैम। को नहीं है ना? मैम, यस, चैप्टर 2 का रिप्रोडक्शन है और हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड पढ़ के आना है। हाँ, जितना तक हम पढ़ाए उतना तक पढ़ के आओगे। जैसे फोटोसिंथेसिस किसको बोला जाता है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल मैम, को बोला जाता है। मैम, यस, मैम, स्टोमाटा किसको बोला जाता है? हाँ, स्टोमाटा। स्टोमाटा। स्टोमाटा देखो यहाँ पे बता। यस मैम। स्टोमाटा, इसको इरेज करते हैं। स्टोमाटा ऐसे लीव्स होता है, देखे हो ना? लीव्स ऐसे होता है पेड़ का। हाँ, लीव्स देखो ना, ऐसे होता है पेड़ का, प्लांट्स का। यस मैम। इसको अगर अच्छे से सनलाइट में रखोगे नजर आएगा। इसी होल्स को क्या बोला जाता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर करता है और चलिए तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाता है और बाहर निकलता है। ठीक है, यस मैम। जैसे हम लोग यस मैम। हाँ, पहले सुनो। जैसे हम लोग ब्रीथिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्लांट्स उसका उल्टा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एक दिन में, रात में उल्टा हो जाता है। फिर रात में जैसे ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये जो लेता है गैस एक्सचेंज करता है हेल्प ऑफ अ स्टोमाटा। स्टोमाटा के हेल्प से वो करता है ये। ठीक है, समझ में आया फिर? यस मैम। और किसी को प्रॉब्लम? फोटोसिंथेसिस का देखें तो फोटोसिंथेसिस का समझा देते हैं और इसका फोटोसिंथेसिस
क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो ये दोनों रॉ मटेरियल है, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पे खाना प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया सबको? और Yes, ma'am. और किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. होमवर्क Ma'am. yes, होमवर्क क्या है, रिलेटेड कीवर्ड्स पढ़ के आओगे। जो जहां तक हम पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स या जो भी क्वेश्चन आएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, प्रोडक्शन क्या है, ये सारा पढ़ के आओगे, ठीक है। ओके, Yes, ma'am. Okay, ma'am. देन बाय बाय क्लास, Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय एवरीबॉडी।